Next, ethers. Here, ether, the functional group of ether is bond oxygen bond. This is a functional group. Then there are, for example, CH3, oxygen CH3. Another example, C2H5, oxygen CH3. Name of this compound is dimethyl ether. These two alkyl groups are same, hence it is called simple ether. Simple ether or symmetrical ether. Then here, name of this compound is ethyl methyl ether. Next, ethyl methyl ether. It is also called mixed ether. It is also called mixed ether. Okay, देखो सिंपल है, ये दोनों अल्कील ग्रुप दोनों भी सेम रहेंगे तो उसे हम सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर बोल सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन के बाजू में जो ये दो ग्रुप है, लेफ्ट और राइट के ग्रुप है, वो दोनों डिफरेंट रहेंगे तो उसे हम मिक्स्ड ईथर बोल सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर। Nomenclature already discussed. Then here discuss the preparation of ether, methods of preparation of ethers. See here, first method, next preparation of ethers. First method by dehydration of alcohol. Dehydration means removal of water molecule. Here preparation of ether method dehydration. Dehydration means removal of water. Simple. First general reaction. First one general reaction. First one general reaction. When alcohol, two molecule of generally represented as a alcohol or OH. When alcohol is heated at about 140 degrees Celsius in the presence of concentrated sulfuric acid. When alcohol is heated at about 140 degrees Celsius in the presence of concentrated sulfuric acid to form ether plus removal of H2O, water molecule. This is generally represented as a ether. This one is a alcohol. This is a general reaction. For example, in this example, this R alkyl group. R means alkyl group methyl ethyl. Here example, two molecule of CH3 CH2OH. Name of this compound is ethyl alcohol. Name of this compound is ethyl alcohol. Is heated at about 140 degrees Celsius and concentrated sulfuric acid. We get the product is CH3 CH2 oxygen CH2 CH3 plus removal of H2O. Name of this compound is dimethyl ether. This is a general reaction. This is a example. Here mechanism how to form dimethyl ether from ethyl alcohol. Here three-step mechanism preparation of ether. Here mechanism. अभी तक पूछा नहीं एग्जाम में, ये तो रिएक्शन रहता है, 2 मार्क्स में रिएक्शन रहता है।
अब मैकेनिज्म देखो, सिंपल मैकेनिज्म है, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे देखो, it involves 3 स्टेप मैकेनिज्म। अबे कितना स्टेप है? 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आपको पहले स्टेप में क्या करना है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे हमने जो मैकेनिज्म लास्ट टाइम मैकेनिज्म हुआ है, इथेनॉल टू इथीन, उसमें जो पहला स्टेप है यहाँ पे वो सेम आता है। देखो फर्स्ट CH3 CH2 OH, lone pair of oxygen atom plus H positive. This is an electron deficient species. Attack on lone pair of oxygen atom. We get the product is CH3 CH2 OH2. ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द H पॉजिटिव। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब क्या है? अल्कोहल में प्रोटॉन ऐड करना, उसे हम बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये होगा पहला स्टेप, फर्स्ट वाला स्टेप। देन स्टेप 2, सेकंड स्टेप, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्टेप 2 क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना। अब देखो यहां CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है देखो, ऑक्सीजन गेन इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन आइटम। अब ये कार्बन डिफिशिएंट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे हम 2 इथाइल अल्कोहल लिए, अनदर इथाइल अल्कोहल OH CH2 CH3 सेकेंड वाला, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है यहाँ पे निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल, तब एक कार्बन डिफिशिएंट होता है, एक कार्बन इस पे अटैक करता है, मतलब ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इसको फॉर्म हो जाएगा। देखो क्या फॉर्म हो जाता है, CH3 CH2 ए पॉजिटिव और ये लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन CH2 CH3 हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये वाटर बाहर जाएगा H2O। दिस इज द सेकंड स्टेप। अब लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होता है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन और डीप्रोटोनेशन। मतलब आपको यहाँ पे रिमूव करने पड़ेगा। इस स्पेसिस यहाँ पे लिखो CH3 CH2 ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर और हाइड्रोजन से लेगा आपने, तो ये H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 plus removal of H positive. This is the name of this compound is diethyl ether। यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा है 2CH3OH, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है उसके लिए मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, सो ये न्यूक्लियोफाइल हाँ डोनेट करेल, ये स्पेसिस तैयार हुई, लास्ट डीप्रोटोनेशन मींस रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है।
अभी तक ये मैकेनिज्म पूछा नहीं है एग्जाम में, ये रिएक्शन पूछा है 2 मार्क्स में, तो करके रखो, इतना भी ये नहीं है। ओके, दिस इज अ मैकेनिज्म। ओके, दिस इज अ फर्स्ट प्रिपरेशन of ether from dehydration of alcohol. Okay, अब next important for exam, Wilmanson synthesis or Wilmanson ether synthesis. First general reaction. First general reaction here, when alkyl halide RX is heated with sodium alkoxide. Is heated with, for example, generally, when alkyl halide is heated with sodium alkoxide, name of this compound is sodium alkoxide. Here R means alkyl, X means halide. When alkyl halide heated with sodium alkoxide to form ether, this reaction is called a Wilmanson ether synthesis. Okay, simple है, X and Na remove by NaX, this R bond OR plus removal of NaX. This is a ether. Okay, this is a general reaction. An example, your example, this R is methyl group, this R is ethyl or methyl group here, and X is halogens, means fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, see here, CS3 plus Na as it is, oxygen as it is, this R is replaced by C2H5. R is replaced by C2H5. Name of this compound is sodium ethoxide. Name of this compound is sodium ethoxide. इसका नाम क्या है? मिथाइल, Cl means क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, NaCl बाहर रहेगा, मिथॉक्सी इथेन फॉर्म हो जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट, CS3, ये दोनों निकल जाएगा बाहर, NaCl। अब प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन C2H5 प्लस रिमूवल ऑफ NaCl। कॉमन नेम इथाइल, मिथाइल, ईथर, बेस नेम मिथॉक्सी इथेन। आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा है, मार्च 2019, हाउ डू यू कन्वर्ट मिथॉक्सीथेन बाय विल्मनसन ईथर सिंथेसिस। आपको ये तैयार करना है मिथॉक्सीथेन विल्मनसन ईथर सिंथेसिस। तो सिंपल है, when methyl chloride heated with sodium ethoxide to form methoxyethane. It's a very important reaction, general reaction और example आपको एग्जाम में रहेगा ही 2 मार्क्स में। This is a Wilmanson ether synthesis. Next, better results are obtained if the alkyl halide is primary. जब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बेटर रिजल्ट व्हेन alkyl halide is primary। एक एग्जांपल देखो, here example CS3
ऑक्सीजन सॉरी कार्बन ONA, इसका नाम है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड प्लस BrCH3, इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। आपको बेटर रिजल्ट क्यों मिलेगा? जब अल्कील हैलाइड होगा वो प्राइमरी है और ये टर्शरी है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सिंपल रिएक्शन है, यानी Br बाहर निकल जाएगा, अब एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो CH3 ऑक्सीजन एज इट इज है, अब चेंज क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा यानी Br। ओके, ये हो गया। आप प्राइमरी हैलाइड लेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ टर्शियरी अल्कील हैलाइड इज यूज्ड टू फॉर्म अल्कीन। जब हमने ये प्राइमरी अब टर्शियरी हैलाइड लिया, फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल टर्शियरी हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटीन ब्रोमाइड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टेंट टर्शियरी ब्यूटीन ब्रोमाइड प्लस कहां से आपको इसको करना है? सोडियम मिथॉक्साइड रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या रहता है? टर्शियरी ब्यूटीन जो भी है वो क्या है? कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म है यानी अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस मिथाइल अल्कोहल प्लस रिमूवल ऑफ NaBr। अब देखो यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है? CH2 ए हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड और ये निकल जाएगा। और इसका आपने आयोनाइज किया तो क्या मिलेगा आपको? Na पॉजिटिव O नेगेटिव CH3, ये H पॉजिटिव और O नेगेटिव मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, Br नेगेटिव Na पॉजिटिव NaBr फॉर्म हो जाएगा। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इतना ध्यान में रखो, हमने प्राइमरी हैलाइड लिया तो बेटर रिजल्ट मिलता है। जब टर्शियरी हैलाइड लिया, टर्शियरी हैलाइड देन फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्कीन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म होता है। दिस इज अ टर्शियरी ब्यूटीन ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटीन ब्रोमाइड। यानी हमने टर्शियरी लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, दिस इज अ सेकंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। Next, preparation of phenolic ether. Here, phenolic ether when sodium phenoxide, benzene ring ONA. Name of this compound is sodium phenoxide. When sodium phenoxide is treated with methyl iodide, name of this compound is methyl iodide, to form। अब देखो यहाँ पे ये Na और ये हाइड्रोजन Na बाहर जाएगा, CH3 यहाँ पे आएगा। तो प्रोडक्ट में देखो बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन भी एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा?
CH3 आएगा और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यानी सोडियम आयोडाइड बाहर आ जाएगा. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज anisole. Another name is methoxybenzene. Another name is methoxybenzene. This is a preparation of phenolic ether. Then physical properties of ether. First property, boiling point. Lower members of ethers are boiling point is low. Boiling point is lower. Then solubility, ethers are sparingly soluble. Okay, this is the physical properties. Sparingly soluble in water. Up next, chemical reactions. First, cleavage of carbon oxygen bond. ये दो रिएक्शन है, एक कोल्ड HI के साथ है और दूसरा है हॉट HI के साथ. मतलब टेम्परेचर 373 केल्विन टेम्परेचर है. अब फर्स्ट रिएक्ट विद कोल्ड HI. फॉर एग्जांपल हियर एग्जांपल इज व्हेन एग्जांपल इज CH3 CH2 oxygen CH2 CH3. Name of this compound is diethyl ether. When diethyl ether react with cold HI to form a mixture of alkyl halide and alcohol. Here यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडीन आयोड ऐड हो जाएगा. अब प्रोडक्ट देखो CH3 CH2OH CH3 CH2OH अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा प्लस ये प्रोडक्ट CH3 CH2 iodine. Name of this compound is ethyl alcohol. Here ethyl iodide. आपने कोल्ड HI के साथ रिएक्ट किया इथर तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल आयोडाइड. देन नेक्स्ट phenolic. Next number example. Here example number 1, example number 2. Here anisole CH3 is react with cold HI. तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है OH plus removal of CH3 iodide. Name of this compound is phenol. Here methyl iodide. यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है मिथाइल आयोडाइड. ओके, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज anisole. अब देखो यहाँ पे दो रिएक्शन है, एक कोल्ड HI से होता है और एक हॉट HI से होता है. हमने फर्स्ट diethyl ether is react with cold HI to form a mixture of ethyl alcohol and ethyl iodide. Another, when anisole or so here methoxybenzene is react with cold HI to form phenol. अब देखो नेक्स्ट हॉट HI के साथ मतलब सो हाइड्रोजन आयोडाइड. अब रिएक्शन देखो CH3 CH2 oxygen CH2 CH3. Name of this compound is diethyl
इथर। आपको हीट करना है 373 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ HI, 2 मोलिक्यूल ऑफ HI। अब देखो यहाँ पे हमने देखा एक ही कार्बन ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब हॉट होगा तो एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दोनों ही ब्रेक हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये भी ब्रेक हो जाएगा, ए भी ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, देखो ए ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन H2O बाहर जाएगा और एक 2 आयोडीन ये दोनों के साथ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा 2 मोलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 आयोडाइड प्लस रिमूवल ऑफ H2O। कोल्ड होगा तो डिफरेंट 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। हॉट HI होगा तो एक ही तैयार होता है, इसका नाम है इथाइल आयोडाइड। ओके, इतना ध्यान में रखो। कोल्ड HI होगा तो एक ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन कार्बन, और हॉट होगा तो ये दोनों भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। आपने शोले फिल्म देखा होगा, उसमें ठाकुर है, ये ऑक्सीजन मतलब समझने के लिए नहीं, याद रखने के लिए, ये ठाकुर है, उसमें ढोलक भी है, ये हाथ मुझे दे दो। मतलब जब हॉट HI होगा तो ये दोनों भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इतना ध्यान में रखो। ओके, दिस इज अ रिएक्शन विथ कोल्ड HI एंड हॉट HI। ये भी आपको एग्जाम में रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज अ रिएक्शन। Next, electrophilic substitution reaction. First one, halogenation. This electrophilic substitution reaction occurs at ortho and para position. First, bromination. Bromination means addition of bromine. Here, 2 molecule of anisole reaction. 2 molecule of anisole react with 2 Br means bromine in the presence of acetic acid CH3CO2H, in the presence of acetic acid to form orthobromoanisole, to form orthobromoanisole। ortho position में जाएगा Br plus another here OCH3, here para position Br plus removal of 2HBr, इसका नाम है orthobromoanisole। ऑर्थो पोजीशन ए, पैरा पोजीशन पैरा ब्रोमोअनिसोल। ओके, इसका नाम अनिसोल। सिंपल रिएक्शन है, सेंटेंस क्या होगा, when anisole react with bromine in acetic acid to form orthobromoaniline and parabromoaniline. Here this product is major, this product is major, this product is minor। माइनर मतलब इसका प्रमाण समझो 10% रहेगा, ये प्रोडक्ट रहेगा 90% रहेगा। अब ध्यान में रखो, जो भी पैरा प्रोडक्ट रहता है वो मेजर रहता है और ये आर्थो प्रोडक्ट क्या रहता है, माइनर रहता है। दिस इज अ हैलोजिनेशन। अब नेक्स्ट electrophilic substitution reaction. This is a name reaction, Friedel-Crafts reaction. First alkylation, second one acylation. Alkylation means addition of alkyl group, for example CH3Cl. In acylation, addition of acyl group CH3COCl। अब देखो दोनों भी सिंपल रिएक्शन है, ये दोनों भी रिएक्शन हेलो अल्केन में हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्किलेशन।
फंक्शनल ग्रुप 6 है। अब देखो यहाँ पे सिंपल है। हियर 2 molecule of anisole, 2 molecule of anisole is react with 2 molecule of CH3Cl or methyl chloride in the presence of anhydrous aluminum trichloride. This compound name is anisole. This name is methyl chloride. Name is methyl chloride. To form two products, a mixture of orthomethoxytoluene and para-methoxytoluene, or 2 and 4. Here, as it is your oxygen CH3, यहाँ पे आएगा CH3, methoxytoluene. Here 1 2 3 4 methoxytoluene. Alkylation means CH3Cl. Same reaction but here CH3COCl. Acylation. अब यहाँ पे देखो 2 molecule of anisole plus 2 CH3COCl. Name is acetyl chloride. Your name is anisole. Okay. In the presence of anhydrous aluminum trichloride, product is as it is OCH3. अब प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा आर्थो प्लस OCH3, इधर आएगा C double bond CH3 plus byproduct 2HCl. Here 2-methoxyacetophenol. Name is 2-methoxyacetophenol. Here 1 2 3 4 methoxyacetophenol. 4 methoxyacetophenol. अब इतना ध्यान में रखो, ये दोनों में रिएक्शन में 2 मास से एक रिएक्शन रहता है। अल्किलेशन है तो CH3Cl, यार एसाइलेशन है CH3COCl। देखो यहाँ पे COCH3 ऐड हो जाएगा, वहाँ पे CH3, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे देखो COCH3 है, CH3 है। ओके, ये नंबरिंग क्या है 1 2 3 4, वहाँ पे भी 1 2 3 4 है। ओके, this is a Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction. Next, last reaction, nitration. Next, the last reaction, nitration. Nitration means addition of NO2 group. Addition of NO2 group. See here, reaction. When anisole
react with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid H2SO4. Two products form a mixture of orthonitro anisole, name is orthonitro anisole or 2-nitro anisole. Another product anisole. हमने नाइट्रेशन क्या है मतलब एडिशन ऑफ NO2. when anisole react with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid to form orthonitro-anisole and para-nitro-anisole. Here alcohol, phenols and ether topic is completed. यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल्स, इधर ये टॉपिक है कंप्लीट हुआ है. जितना भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट बोला तो देखो, प्रैक्टिस करो, बाद में आपको इसके क्वेश्चंस भेजता हूँ, वो लिखो. ओके, दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 4 रिएक्शन, हैलोजिनेशन, Cradle-Craft acylation, alkylation, and last one nitration. Okay, then next topic.